Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 23314444, 23717106, or 23717117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज शनिवार है और आज के दिन आपसे सीधी बातचीत हम किया करते हैं और आपको आमंत्रित करते हैं अर्थ नीति, कारोबार और शेयर बाजार से संबंधित सवाल पूछने के लिए। आप भी आज हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे फोन नंबर 23314444, 23717106 या फिर 23717117 पर फोन कर सकते हैं और हमारे साथ अपने सवालों को पूछ सकते हैं। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Domestic markets fall for the second straight week. Sensex and Nifty slump over 1%. Government's Make in India program to complete 8 years tomorrow. And US markets decline on recession worries. लगातार दूसरे सप्ताह घरेलू शेयर बाजार में हुई गिरावट। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांक 1% से अधिक नीचे आए। सरकार का अग्रणी कार्यक्रम मेक इन इंडिया कल 8 वर्ष पूरे कर लेगा और अमेरिका में आर्थिक मंदी की आशंकाओं से वहां के शेयर बाजारों में हुई गिरावट। Domestic markets fell for the second straight week as a flurry of rate hikes by global central banks spooked investors and sparked a global sell-off amid fear of recession. The Sensex at the Bombay Stock Exchange lost 742 points or 1.3% during the week to close at 58,099. The Nifty at the National Stock Exchange declined 204 points or 1.2% during the week to end at 17,327. In the broader market, the BSE small cap, mid cap and large cap indices fell 1% each. At the interbank foreign exchange markets, the rupee marked the biggest weekly decline after April 2021. The rupee depreciated 1 rupee 25 paise during the week to end at a fresh lifetime low of 80.99 against the dollar yesterday. श्रोताओं, हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि आज हमारा शनिवार का विशेष कार्यक्रम है, जिसमें आप हमसे सम्मिलित होकर बातचीत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। एक बार नंबर हम फिर आपको बता देते हैं, 23314444, 23717106 या 23717117। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। A warm welcome, Sharad. नमस्कार मनोज, नमस्कार राजेश और सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन। We have got our first caller online with us, R.S. Dhaya from Delhi. Mr. Dhaya, warm welcome. Please ask your question. सर नमस्कार। Namaskar. मेरा कोहली जी से सवाल है that since the crude oil prices have fallen to $88 per barrel as per the news yesterday in Market Mantra, why the government is not automatically reducing the prices of petrol and diesel? Okay, Mr. Daya, you see, we should not forget that the oil prices are not entirely market driven. You know, they use when this deregulation happened, they were fully market driven, but then the situation in the country, internationally, the situation was such, and I must tell you at this point that
when the petrol prices or crude oil prices had gone up to $120, $125, at one point $130. So the government had not increased the prices in the same proportion. So as a result, the oil marketing companies were suffering a loss of about 25 to 30 rupees per liter. So they had accumulated a lot of losses, and these losses are now being covered because the oil marketing companies, to remain sustainable, they have to cover the losses. And I'm sure if the crude oil prices continue to remain low, because we should also not forget, Mr. Dahiya, that the prices have been very volatile. I mean, they came down to 110, then they came to 100, then they went down to 90, then they again went back to 96, 97, then they again came. So it's been very volatile. The prices are not stabilizing at any point, but if they consistently remain below, I'm sure government is going to, take a decision, or the oil marketing companies will take a decision to reduce the prices. For now, I think the volatility is not giving any clear signals. And one more aspect I would like to mention, that when the economic policy came just before the budget this year, $70 was the projected price that government had kept. At that time, of course, there was no Russia-Ukraine war, because that was 1st of February, if you remember. So $70 was kept at a benchmark that we are assuming and making the budget on the basis of $70. But then on 24th February, Russia-Ukraine war started. And that's when the financial markets, went into a mayhem. So I think, but if the prices continue to remain low, I'm sure you will see a price cut in the times to come, Mr. Dahiya. हमारे साथ फोन लाइन पर इस बीच आ जुड़े हैं दिल्ली से JS सलूजा। सलूजा साहब, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। My question to Sharadji is that should we buy stocks of holding company rather than the main company when we know that that holding company is good? And just please describe it in a bit detail. What is holding company, and should we buy more shares of holding company as it gives good dividend also? Thank you. Mr. Saluja, it is not necessary that you should have a bias always towards a holding company. See, a holding company, subsidiary company relationship is very clear. Subsidiary company is fully held by the holding company. There's no doubt about that. But sometimes the holding company may have multiple subsidiaries. So it is quite possible that one subsidiary is making a profit, the other subsidiary is making lower profit, the third subsidiary is maybe making a loss. So I think the decision to remain invested or the decision to invest should be taken individually as per the company and while studying the sector also. So you see the fundamentals of the company, whether the bottom, because the share price of that company will be decided, is normally settled around its own fundamentals, not on the holding fundamentals. If a company is making profit, here we don't name companies, otherwise I would have given you certain examples as to how holding and subsidiary prices may differ. So I think look at the fundamentals of the subsidiary company. If the subsidiary company fundamentals are strong, the bottom lines are good, the valuation is attractive, PE ratio is low, book value ratio is attractive, then go for it. So it is not a universal principle to say that, we should always invest in holding company. There can be a situation where holding company investment may be better, but we cannot take it as a uniform principle, Mr. Saluja. From Noida, we are joined in by SPS Jain. We welcome you, Mr. Jain. Please ask your question. नमस्कार जी, और शरद जी को भी नमस्कार। नमस्कार जैन सर। हाँ शरद जी, अखबार में एक खबर थी कि अपना इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफी नीचे आ गया, शायद 12 हफ्ते का लोएस्ट आ गया है जी। तो क्या कारण है, और इसमें हमें समझाइए कि फॉरेन करेंसी एसेट्स क्या होते हैं, ये जो विदेशी लोग हमारे शेयर खरीदते हैं वो उसकी वैल्यू भी फॉरेन करेंसी एसेट्स में आती है या अदरवाइज? जैन, पहला सवाल है आपका कि नीचे क्यों आ गया। जी हाँ, अगर हम कल तक के आंकड़े ले तो $97 बिलियन हम पीक से, जो कि 644 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, वो अब गिर के 546 बिलियन डॉलर आ गया है। तो करीब करीब आप लगाइए 97-98 बिलियन डॉलर का फर्क पड़ गया है वहां पर। जी हाँ, बिल्कुल। दो कारण इसके मुख्य हैं, बल्कि 3 कहूं अगर मैं। और पहला कारण है इसका कि आरबीआई ने समय समय पर इन रिजर्व्स का इस्तेमाल किया है करेंसी स्वैप्स के लिए। करेंसी स्वैप होती है जब भी रुपये के ऊपर प्रेशर आता है तो आरबीआई उसमें से डॉलर छोड़ता है, डॉलर की सप्लाई बढ़ा देता है, उसके बदले में रुपया वापस ले लेता है, या उसको करेंसी स्वैप कहते हैं अगर मैं मोटी भाषा में आपको समझाऊं, तो उससे प्राइस स्टेबलाइज हो जाती है। पहला कारण। दूसरा कारण, शेयर मार्केट से भी जो एफपीआई और एफआईआई का निरंतर पैसा, पिछले 2-3 दिन में आपने देखा होगा, एक दिन उन्होंने
2-2.5 करोड़ निकाला, अगले दिन 3,000 करोड़ के आसपास निकाला, तो वो कीमतें उसके निकालने से भी प्रेशर बनता है। और तीसरा ये भी एक कारण है जो कि मैं इसको एक अच्छा कारण मानता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था बाकी अर्थव्यवस्थाओं से स्ट्रांग है, तो यहां पर डिमांड स्ट्रांग बनी हुई है, जिसके कारण हम इंपोर्ट्स बहुत कर रहे हैं और एक्सपोर्ट हमारे कम हो रहे हैं, थोड़े स्टेबलाइज हो गए हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट तो बाहर के देशों में होता है, तो वहां पर थोड़ा रिसेशन के सिम्टम्स अब दिखने लग गए हैं। अगर हम अमेरिका और यूरोप की खासकर बात करें तो एक्सपोर्ट स्टेबलाइज हो गए हैं, इंपोर्ट हमारे निरंतर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो अंदरूनी डिमांड है, जो डोमेस्टिक डिमांड है, वो अभी भी बहुत बॉयंट है, बहुत अट्रैक्टिव है, तो उसकी वजह से इंपोर्ट्स हमारे ज्यादा हैं। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो इस समय थोड़ा सा बहुत फेवरेबल नहीं है, जिसकी वजह से डॉलर की मांग लगातार बढ़ रही है। तो 3 कारणों से है। दूसरा आपने पूछा एसेट्स कौन से होते हैं, देखिए जो सारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होती है वो सारे के सारे रोकड़े में नहीं होती है, उसमें फॉरेन करेंसी एसेट्स भी होते हैं, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक कुछ विदेशी ट्रेजरी में, विदेशी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में उसमें निवेश भी करता है, उसको भी हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में काउंट करते हैं। हालांकि उनकी जो वैल्यू होती है वो कम होती है, उसको हम फॉरेन करेंसी रिजर्व्स कहते हैं या फॉरेन एसेट्स कहते हैं। और आपने पूछा कि जो विदेशी निवेशक यहां पर करते हैं उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो तो पैसा आना जाना लगा रहता है, कभी किसी दिन आ जाता है, किसी दिन निकल जाता है, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैन साहब जी, दिल्ली से ही हम आमंत्रित करना चाहेंगे अपने एक और नियमित श्रोता भारत भूषण जी को। बहुत बहुत स्वागत आपका भारत जी, सवाल पूछें। हाँ जी सर, मार्केट मंत्र टीम को नमस्कार, कोहली सर को भी नमस्कार है। नमस्कार सर, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का महत्वाकांक्षी योजना का निर्माण किया, मतलब उन्होंने शुरुआत की थी, उसमें क्या प्रगति है? और दूसरी सर कि जो खाद्य प्रसंस्करण जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है वो मेरे हिसाब से सर ग्रामीण क्षेत्र में लगता, तो इससे क्या होता सर कि ग्रामीण रोजगार के अवसर भी बढ़ते और जनसंख्या का जो दबाव हो रहा है अपने शहरी क्षेत्रों में वो कम होता। तीसरा, और जो उद्योगपति हैं उनकी पोस्टिंग भी कम बैठती क्योंकि वहाँ पे सारी चीजें थोड़ी सस्ती मिलती है। धन्यवाद सर। मनोज, कौन सी योजना का जिक्र कर रहे थे जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू करी गई थी? स्वर्णिम क्वाड्रिलेटरल जो उनकी योजना थी, स्वर्णिम। ठीक है, जिसको हम भारतमाला में भी वो हो गया है। देखिए, ये बिल्कुल शुरू कर गई थी और इसका काम भारत भूषण जी, आपको ये सुनकर खुशी होगी कि अब बहुत ही ज्यादा रफ्तार से चल रहा है। तो रोज का रिकॉर्ड सड़कों का जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, सड़कों को बनाया जा रहा है। और सागर माला है, भारत माला है, जो भारत नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, जिसके अंदर भारत सरकार ने 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा का खर्च कमिट किया है और बहुत तेज रफ्तार से। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जितने भी भारत सरकार की डेवलपमेंट या विकास की योजनाएं चल रही हैं, उसमें से सबसे तेज चलने वाली अगर कोई योजना है, वैसे तो सारी योजनाएं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, पर सबसे तेज में ये सड़क की कंस्ट्रक्शन है। आप अगर आप दिल्ली में रहते हैं, आप दिल्ली से बाहर किसी भी तरफ निकलें, चाहे आप यूपी की तरफ निकलें, चाहे आप हरियाणा की तरफ निकलें, आगे आप राजस्थान की तरफ जाएं, आपको सड़कों में जो बदलाव दिखाई देगा। और आपको मैं बता दूं कि दिल्ली और राजस्थान की जो सड़क है, यही दिल्ली मुंबई का ये क्वाड्रिलेटरल का ही एक हिस्सा है। यही आगे जाके क्वाड्रिलेटरल में कन्वर्ट हो जाता है और दिल्ली मुंबई का जो कॉरिडोर है उसमें भी बहुत तेज रफ्तार से काम चल रहा है और आप आगे से 10-11 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंच सकते हैं सड़क के रास्ते। दूसरा, आपने पूछा कि फूड प्रोसेसिंग, जी हाँ, बिल्कुल भारत सरकार का भी ये प्रयास है और मैं भी अपने लेवल पे ये सलाह देता रहता हूं कि हमें फूड प्रोसेसिंग जो है वो गांव में खेतों के आसपास करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर टमाटर कहीं पर उगते हैं तो वहां पर टोमेटो केचप के या टोमेटो प्यूरी के प्लांट्स लग सकते हैं। आलू ज्यादा लगते हैं तो हम वहां पर पोटैटो चिप्स के प्लांट लगा सकते हैं। अगर गेहूं धान का उत्पादन है तो वहां पर गेहूं से सीरियल्स बनते हैं। बहुत सारी जी हाँ, इस पे काम चल रहा है भारत भूषण जी। और फूड प्रोसेसिंग वो इसलिए थोड़ा सा धीमी रफ्तार पे है क्योंकि वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको बनाने में वक्त लग रहा है कि वहां पर, और थोड़ी स्किल्ड मैन पावर भी वहां पर थोड़ा अभी समस्या आती है। हम उस तरफ अग्रसर हैं और जिस दिन ये हो जाएगा आप समझिए कि भारत का खाद्य के पदार्थों में भारत का एक चमकता सितारा के जैसा स्थान होगा और भारत की कृषि क्षेत्र खासकर जो है उसको सबसे ज्यादा इसका लाभ मिलने वाला है क्योंकि जो बिचौलियों का रोल होता है वो भी कम हो जाएगा। सीधा ही किसान कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगे फूड प्रोसेसिंग कंपनी से। इस पे काम चल रहा है। सरकार के प्रायोरिटीज में ये एक है फूड प्रोसेसिंग। इस पे बहुत ज्यादा चर्चा भी चल रही है और इस पे काफी काम भी कुछ जगह हुआ है। भारत इतना विस्तृत देश है, इतने गांव है कि अब मान लीजिए आप दिल्ली में बैठे हैं और कहीं पर मान लीजिए मध्य प्रदेश में या किसी और जगह अगर कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग रहा है तो कई दफे क्या होता है आम सिटीजन को उसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो इस पे कुछ यूनिट्स लग भी रहे हैं, कुछ लगने वाले हैं और इस पे पूरी तरह से भारत भूषण जी आप आश्वस्त रहें
कि इस पे बहुत काम चल रहा है। जी। Gautam Saxena now joins us from Delhi. We welcome you, Gautam. Please ask your question. Thank you very much. Good evening to everyone. Good evening. सर लास्ट वीक का प्रोग्राम टेलीकास्ट नहीं हुआ था, प्रधानमंत्री जी का भाषण आया था, तो वो भी यूट्यूब पे भी नहीं आया और वेबसाइट पे भी नहीं आया, तो मुझे माफ कीजिएगा, वो क्वेश्चन दोबारा पूछूंगा। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या फिर जो कंपनीज लाइफ इंश्योरेंस में डील कर रही हैं, उनके स्टॉक्स 52 वीक्स लो पे चल रहे हैं काफी टाइम से, और जो मार्केट लीडर है उसका शेयर अभी लिस्टिंग के टाइम से लेके अब तक काफी डाउन है, 52 वीक पे है और 27% लो है। तो आप बताएं कि इनका क्या मतलब कंट्री क्या रहेगा, कैसे इनकी परफॉर्मेंस रहेगी अगले 1 साल और अगले 2 साल से 3 साल के टाइम सिनेरियो में। थैंक यू वेरी वेरी मच। देखिए, मुझे याद है आपने पिछले हफ्ते कार्यक्रम पूछा था, कुछ तकनीकी कारणों से, और प्रधानमंत्री जी का उस समय वक्तव्य आ रहा था जिसकी वजह से ये सैटेलाइट पे शायद गया था प्रोग्राम, जहां तक मुझे याद है। पर कोई बात नहीं, अब क्योंकि हम रेडियो पर हैं तो हम आपको फिर से इसके बारे में बताते हैं। देखिए, इंश्योरेंस कंपनीज का भविष्य भारत में मुझे बहुत उज्जवल दिखता है। जिस कंपनी का आप जिक्र कर रहे हैं, हम नाम नहीं लेते सरकारी क्षेत्र की, जिसको आईपीओ आया, ये सच है कि जिस प्राइस पे आईपीओ आया था और जिस प्राइस पे लोगों ने खरीदा, उस प्राइस को वो सस्टेन नहीं कर पाया। कुछ मार्केट के सेंटिमेंट, मार्केट में वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा थी कि वो अपनी जगह ठहर नहीं पाया। पर मैं गौतम जी एक चीज मानता हूं कि इंश्योरेंस सेक्टर में जो भी निवेश करता है, क्योंकि इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जो कि आपको साल बाद प्रीमियम आता है, 1 साल में एक ही बार प्रीमियम देते हैं, किसी ने क्वार्टरली हाफ ईयरली ले रखा हो तो अलग बात है, पर प्रीमियम साल में एक ही बार आता है। कोई ऐसी दुकान वाली सेल नहीं है, कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब भी कोई इंश्योरेंस सेक्टर में गौतम जी इन्वेस्ट करे तो वो एक लंबी अवधि का नजरिया लेके चले। और पीछे उस कंपनी से बयान भी आया था, उनके चेयरमैन साहब ने, बहुत सारे और भी अधिकारियों ने ये बयान दिए थे कि इसको आप रखें, भले ही अभी ये कीमत इसकी नीचे है, पर आपको ये अंततः, क्योंकि सबसे बड़ी उसके पास शेयर है कंपनी के पास, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा प्राइवेट कंपनीज के आने से मार्केट में कंपटीशन भी आया है, जो कि बहुत हेल्दी है, लॉन्ग रन में बहुत हेल्दी है। पर जहां जहां जिस देश में भी इंश्योरेंस कंपनीज ने रिटर्न दिया है, उनमें नजरिया, गौतम जी आप 5 से 7 साल का अगर नजरिया रखें तो बेहतर रहेगा। मुझे लग रहा है 1 से 3 साल का नजरिया इंश्योरेंस सेक्टर में थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, क्योंकि वो सेक्टर का कैरेक्टर ही ऐसा है, उसका नेचर ही ऐसा है कि वो लंबी अवधि में आपको रिटर्न देता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा, बहुत सारे आपके जैसे और भी निवेशक हैं जिनको आईपीओ में किया था और आज वो कीमत देख के उनको थोड़ी चिंता हो जाती है। मुझे नहीं लगता उनको चिंता करने की जरूरत। जी हाँ, आपने अगर मान लीजिए 800-900 रुपए लगाए, आज वो 600, 650, 700 आ जाता है, तो देख देख के आदमी को थोड़ी परेशानी होती है। पर ये शेयर मार्केट है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, यही शेयर मार्केट की खूबसूरती है। कभी कभी आपका 100 रुपया लगाया हुआ अगले दिन 200 भी हो जाता है, कभी कभी 100 रुपए लगाया हुआ 70 रुपए भी हो जाता है। तो शेयर मार्केट में जो आता है वो मेंटली प्रिपेयर होके आए। पर यहाँ मुझे लंबी अवधि में इसके अच्छे रिटर्न्स आते दिखते हैं। आप इसको अभी लेके और इसको आराम से बैठिए और इसमें कुछ समय आप इंतजार करिए। जी हाँ, ये चले मुंबई से हमारे साथ हैं रत्नाकर जी, स्वागत, सवाल पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी, आप जुड़ चुके हैं, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मेरा सवाल है कि ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज है, उसका समझो आम आदमी के लिए परचेज करना है तो उसके लिए क्या तरीका है और किधर से हम ऑनलाइन वो परचेज कर सकते हैं? और दूसरा सवाल है कि डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया के जरिए हमने बहुत प्रगति कर दी है डिफेंस सेक्टर में, तो उसमें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्या और उसका क्या पोजीशन? जी हाँ, रत्नाकर जी, पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूं, क्योंकि पहला सवाल तो प्रोसीजरल है, उस पर तो आते ही है। और डिफेंस सेक्टर में बहुत जबरदस्त तरक्की भारत ने करी है। जहां भारत इंपोर्टर होता था, पूरी तरह से डिफेंस में डिपेंडेंट होता था रशिया पर, इजराइल पर, बहुत सारे देशों से भारत में सारा जो आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का सामान आता था। अब भारत ने जो तरक्की करी है, मुझे लग रहा है भारतीय क्षेत्र के जो संस्थान है और जो निजी कंपनियां से जुड़ी हुई हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका ये खुल के आया है। और भारत में उदाहरण के तौर पर लूं मैं, तो अभी प्रधानमंत्री जी ने देश को समर्पित किया था आईएनएस विक्रांत, भारत में पहला बना हुआ युद्धपोत। उसके बाद तेजस जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, आप देखेंगे पूरी दुनिया से उसकी डिमांड आ रही है। और पहले डिमांड आ रही थी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, अब उसकी विकसित देशों से भी डिमांड आ रही है। तो मुझे लग रहा है बहुत बहुत उज्जवल भविष्य। और जब मुझसे कोई निवेश का सेक्टर पूछता है कि कौन से सेक्टर में निवेश किया जाए, तो सबसे पहले मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर डिफेंस सेक्टर होता है। और इसको अगर आप लेके आराम से 2-3 साल तक रखें
तो यहाँ पर मुझे तो ऐसा लग रहा है, अगर मैं लोकल भाषा में बोलूं और बिल्कुल कैजुअल तरीके से बोलूं, तो लाइन लगने वाली है ग्राहकों की डिफेंस सेक्टर में भारत में बने सामान के लिए, और चाहे वो आर्टिलरी का सामान हो, चाहे वो युद्ध पोत हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो गन्स हो, और भी जितने छोटे छोटे पुर्जे हैं जो लगते हैं, मुझे लग रहा है मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा लाभ अगर कोई उठा रहा है तो वो डिफेंस सेक्टर इस समय उठा रहा है, उन सेक्टर्स में से जो सबसे ज्यादा फायदे में है। दूसरा आपने पूछा जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स अगर आप लेना चाहते हैं, आपको याद होगा भारत सरकार ने पीछे 10,000 रुपए तक का निवेश भी इसमें अलाउ कर दिया था, जबकि पहले ये बहुत बड़े बड़े निवेशकों के लिए 5-5 करोड़ के निवेशकों के लिए ये क्षेत्र खुला हुआ था। अब आप इसमें कर सकते हैं, आप अगर आरबीआई की वेबसाइट पे जाएंगे आपको वहां भी मिलेगा। कुछ निजी जो इन्वेस्टमेंट एजेंसीज हैं वो भी इसमें आपकी मदद करती हैं, तो उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। बाकी आरबीआई की आप वेबसाइट पे जाएं, समय समय पर जो गवर्नमेंट की ट्रेजरीज होती हैं, आरबीआई जो ट्रेजरीज निकालता है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स निकालता रहता है, जिसमें रिटेल निवेशक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप लीजिए रत्नाकर जी, जब आप लेंगे हमें बताइएगा आपने कौन सा लिया, कितना रिटर्न उसका आ रहा है, और हमें खुशी होगी जानकर के। रत्नाकर जी के माध्यम से मेक इन इंडिया पर चर्चा शुरू हो गई और रक्षा क्षेत्र आने वाले दिनों में सितारे की तरह चमकता हुआ होगा भारत के लिए वो स्पॉट, हम कह रहे हैं हमारे विशेषज्ञ शरद जी। यहां हम सभी श्रोताओं को जानकारी देना चाहेंगे कि सरकार का अग्रणी कार्यक्रम मेक इन इंडिया कल 8 वर्ष पूरे कर लेगा। इस अवधि में अभी तक वार्षिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई दोगुना होकर $83 अरब तक पहुंच गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार सेमीकंडक्टर जैसे कई क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। विश्व अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर की उपयोगिता की पहचान करते हुए सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर डिस्प्ले और डिजाइन के अनुरूप परिवेश बनाने के लिए $10 अरब की एक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष अप्रैल-अगस्त में वर्ष 2013 की इसी अवधि की तुलना में भारतीय खिलौनों का निर्यात जबरदस्त तरीके से 6,036% बढ़ा है। मंत्रालय के अनुसार सार्वजनिक खरीद मेक इन इंडिया वरीयता आदेश 2017 ने स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दिया है। इसके अनुसार सार्वजनिक खरीद में स्वदेशी वस्तुओं, कार्यों और सेवाओं को वरीयता दी जाती है। इससे देश में कारोबार करने के माहौल में सुधार हुआ है और लागत में कमी आई है। मंत्रालय ने कहा है कि विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने उदार और पारदर्शी नीतियां अपनाई हैं और अधिकतर क्षेत्रों को ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से एफडीआई के लिए खोल दिया गया है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम ने देश को प्रमुख वैश्विक विनिर्माण और निवेश स्थल के रूप में बदल दिया है। ये कार्यक्रम न्यू इंडिया की विकास गाथा में भागीदारी के लिए दुनिया भर में संभावित निवेशकों और भागीदारों को खुला आमंत्रण है। मेक इन इंडिया 27 उद्योग क्षेत्रों में फैला है और इनमें रणनीतिक महत्व के विनिर्माण और सेवा क्षेत्र भी शामिल हैं। From Delhi, we are joined in by Ramesh Kathuria. We welcome you, Ramesh. Please ask your question. I'm from Delhi. I'm speaking Ramesh Kathuria, advocate. My question is, what is the concept of averaging in share market? How it is done? What are the bases? What are the points? Mr. Kathuria, averaging principally means that suppose you bought a share at, let's say, 100 rupees. And tomorrow the price of share falls down to, let's say, 80 rupees. So what some investors do is they buy similar quantity of shares at the lower price. So what happens is if you buy in similar quantity which you bought at 100, you buy the same quantity at 80. So your average price comes down to 90. Obviously, if I'm going by mathematics. If you buy more at lower level, you can even lower the price than this because that's how the average calculations work. Now, averaging has been used traditionally for a very long time by investors, but sometimes, Mr. Kathuria, I would like to tell you that averaging, certain experts, including me, I'm not in favor of averaging too much because sometimes what happens is you keep buying, the price keeps falling, and you end up investing. In the process of averaging, you end up pumping out all your investment and savings in one single security. So this is one reason why averaging is not very good. And secondly, sometimes the price of the share may not rise for a few months or sometimes even a year or more than that. Then you get trapped in that investment just to say for the sake of average. So average only works when the prices move up and down, but sometimes the prices get held up at a lower level.
So then your average is not going to work, and you end up blocking your valuable savings in that script. Whereas the alternate strategy is, had you invested elsewhere, you could probably you would have recovered your losses or the shortfall in the price which occurred. So therefore, it is being used. It is used averaging. I mean, a lot of people do recommend that you should average it out, but I am not a big fan of averaging because I feel that a lot of valuable savings get blocked in a single script, Mr. Kathuria. I hope mathematically I have explained to you what is averaging, and please try it very selectively, I would say. Don't just block your money in averaging is my advice to you, Mr. Ramesh Kathuria. Moving on, the U.S. markets fell yesterday as investors fear that the U.S. Federal Reserve's hawkish rate policy to curb inflation may push the American economy into recession. The Dow Jones Industrial Average slumped 486 points or 1.6% to 29,590. The S&P 500 lost 65 points or 1.7% to 3,693. And the Nasdaq Composite dropped 199 points or 1.8% to 10,868. All the three indices suffered heavy weekly declines. The Nasdaq dropped 5% for the second straight week. The S&P dropped 4.8% and the Dow fell 4%. हमारे साथ कोलकाता से फोन लाइन पर हैं कटारिया। कटारिया साहब, बहुत बहुत स्वागत। तेज गति से अपना सवाल पूछिए, समय हमारे पास अब कम है। हेलो जी, आप जुड़ चुके हैं, सवाल पूछें। हाँ जी, नमस्कार जी, मार्केट मंत्रा टीम, कॉलेज जी को प्रणाम। नमस्कार प्रणाम कटारिया साहब। सर, मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा छोटा सा है। एक्चुअली ये जो पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की जो बात है जी, वो पहले तो फ्री में करते थे, उसके बाद उन्होंने 500 रुपया चार्ज कर दिया, अभी 1000 रुपया ले रहे हैं जी। तो सर ये एक आम आदमी के लिए तो उतना जरूरी नहीं है कि वो लिंक करवाए, लेकिन ये लोग 1000 रुपया चार्ज लगा रहे हैं। कटारिया साहब, ये जो 1000 रुपए चार्ज लग रहा है, ये एक किस्म से पेनल्टी है, क्योंकि सरकार ने पीछे सालों तक ये अवसर दिए टैक्स पेयर्स को कि आप अपने आधार से पैन को लिंक कर लीजिए, और लगातार उसकी डेट पे डेट उस पर आती गई, आगे बढ़ती चली गई। मुझे लग रहा है 8-10 बार से ज्यादा भी ये डेट बढ़ी है। तो अब एक किसी पॉइंट पे आके तो ये निर्णय लेना था, क्योंकि जिन लोगों ने समय से कर दिया, ये उनके लिए डेटरेंट बन जाता है कि अब आप करेंगे तो अब आपको इसकी कीमत देनी पड़ेगी, वरना आप अपनी रिटर्न वगैरह नहीं फाइल कर पाएंगे। तो एक तरह से ये अब फी कह लीजिए, पेनल फी कह लीजिए, जो लगाई गई है, क्योंकि आप तो बहुत पुराने करदाता लगते हैं मुझे कटारिया साहब, तो आपको तो बहुत पहले कर लेना चाहिए था, पर किसी कारण से किसी का रह गया है तो वो इस जुर्माने को दे के कर सकता है। इट्स अ पेनल्टी मिस्टर कटारिया विच हैज बीन लेविड, क्योंकि लोगों ने वो इतने सारे अवसर गवा दिए, तो कहीं आके तो उसको डेटरेंट बनाना ही था। जी शरद, द मार्केट्स वर caught off guard with the way the US rates Fed said that it will last till 2023. Quickly, your view for the coming week. Well, I think things are not looking very bright, although the market is in a bit of an oversold territory, Rajesh. So therefore, some kind of recovery may be seen. But overall, I think the fear of recession, the clouds of recession are looming large, just that the clouds are looming over Delhi NCR. So the clouds of recession are looming over the world. I hope they don't start falling down. And the market may see some short covering because it's an oversold, but overall the sentiment is not very good, Rajesh. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से शरद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for being with us. And before we close, the headlines once again. Domestic markets fall for the second straight week. Sensex and Nifty slump over 1%. Government's Make in India program to complete 8 years tomorrow, and US markets decline on recession worries. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.